पहले कोई सवाल है Assalamu alaikum everyone. So we will begin our session with recitation from the Holy Quran, inshallah, and then we'll move ahead. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Jazakallah. So I will start by thanking and acknowledging everyone's presence during Ramzan. I understand it's difficult, but we continue to engage with you periodically, and this session has gained some additional importance considering the recently evolving geopolitical situation. However, as a management team, our focus continues to maintain robust business operations and ensure that medicines are available in spite of all the external factors. So with this, we will start our presentation. I have with me our CEO, Mr. Asif Misbah, who has joined us online, and our Managing Director, Dr. Fida, is also with us. So, Asif, move. So this is a brief of our company. Its history formed in 1992 and listed in 2017. Our specialties include pulmonology, cardiometabolic, nephrology, oncology, rheumatology, and anti-infectives. So the manufacturing facility has capability to develop a wide range of dosage forms. Overall, our field force comprises of more than 700 medical reps and covering with nationwide coverage. Okay. So half year overall sales revenue 6.1 billion, and in this the contribution of export sales is 8.8%. Okay, so the manufacturing facility has a produces sterile prenatal products, MDIs, DPIs, etc. The overall installed capacity per day is of 1 million packs per day. So the biotech facility has a capability of manufacturing vials, pre-filled syringes, and pen cartridges. Capacities of 55 million units in a single shift. Next one. So this is a summary of our performance for the half year. Our sales as of December is 6.1 billion, showing a growth of 24%. The gross profit has grown by 34%. The growth in gross profit is better than the growth in sales. This reflects the newer products
modern therapeutic options with better margins. This is resulting in increased, improved gross profits. Overall, the operating profit has also grown by 33%, and the profit before tax similarly has grown by 34%. The PAT has grown by 9%. This represents impact of deferred tax related to our investment in property, plant, and equipment. This is a accounting impact mainly. This again is a graphical presentation of the numbers we have just discussed. Sales growing by 24%, GP by 34%, mainly due to contribution from higher profitable prescription products and expansion in our export footprint. Next one. So we maintain a stable balance sheet. We can see that we are continuously improving and investing in our manufacturing facilities as we move into newer export markets. So different initiatives include upgradation and modernization of our plants and digitalization of most of our production and other operations. And the investment in inventory ensures that we have a robust supply line, and this is a pre-prep for possible scenarios that might arise considering the current geopolitical situation. So we feel and we have planned that under different options, we remain ready and continue to provide our patients with the medicines. There is no gap over there, and the business operations continue as consistently as possible. So we are well placed under different possible scenarios. There's a slight increase in trade debts. This shows nationwide availability of the new products that we have launched. नवीद साहब, हाँ, स्लाइड आपकी मूव नहीं कर रही थी, अब सही जी. Okay. So here we see the growth trend of the company, half-year growth trend over a 5.5-year period. If we see sales has grown significantly, and it has the CAGR for sales is approximately 18%, and the first half growth, year-on-year growth is 24%. Gross profit again has a CAGR of 18% over the 5.5-year period. Profit before tax has a CAGR of 25%. This represents operational efficiencies and disciplined approach to our operations. And net profit CAGR is 30%. So gross profit, as we discussed, our product mix is now moving towards high value modern therapies. So the overall GP percentage are consistently improving. Back, please. There. Okay. So again, operating profit for percentage is also improving from 12% last year to 14% as of the half year end. And the PBT is also on an improving trend at 13%. So the half year, by the end of the year, we expect it to improve further. The move, please.
So the return, these ratios, the return on asset, return on equity, these represent half-year numbers. So proportionately, we can expect them to double on a full-year basis, and which will be an improved number from last year. The return on asset is 6% on 6 months basis. So on a full-year basis, it will be more than the last year. The return on equity again was 30% last year, and on a half-year basis, it is 19%. This again is a significantly improving trend. On a full-year basis, we will continue our upward trajectory on return on equity, and similarly for return on equity after tax, full-year basis will be better than last year. Okay. So the current ratio is robust. The cash flow to capital expenditure shows that we have the ability to finance our capex from our own sources. The cash flow from operations again. Naveed, can you please go back a slide? I think you missed a slide. Okay, go back. Yeah. So this is the return on capital employed. So last year it was 26% return on the capital employed. On a 6-month basis, it is 16. So proportionately, you can say this would be 32% if we just directly add for the next 6 months. So this is a encouraging trajectory. Okay. Then this. Yeah. Cash flow coverage. So the cash flow from operations is 9.9%. On the 6-month basis, the cash flow coverage is again 0.8% on a half-year basis. On a full-year basis, this will match the last year number approximately. So here, our investment in working capital, you can see as we discussed, there's a slight increase in our investment in inventory. This is a strategic move, both in consideration of some large orders and the situation that might arise in the coming days, considering the war situation. The supply lines might be affected. So we feel that we are prepared to face that challenge. And again, by investing in our inventories earlier, we are creating a natural hedge to the expected price increases, the fuel price increase, the energy cost increase, and overall the pressure on suppliers. So we are planning as best as possible. Receivable, the investment in receivable again has increased. This represents the availability drive of our new products, and this will normalize in the coming months. Overall, due to the investment in inventory and receivables, our operating cycle has increased from 127 to 137 days. But this increase is well planned and strategically aligned to ensure continued business operations, irrespective of the geopolitical situation. Okay, this is a interesting slide. You can see that our earnings per share
is on a significantly improving trend. Half year, it is 9.3, which represents only the half year sales number. So on a full year basis, we expect it to be better than last year. The PE ratio is 36, and if you the PE ratio is 20 as of the half year, and this shows that the listed pharma companies having a CAGR of 25% in the last 3 years, they have a PE of 15 to 18. In comparison, Mactar has a CAGR of 51% and a PE ratio of 18. So this shows the potential for the investors that our CAGR is also better than the industry, and the PE ratio, which reflects the confidence and expectation of our investors. So that is also better than the overall pharma industry numbers. So dividend per share has been on an increasing trend, and the dividend yield is 24%. Yeah. So the dividend payout last year was 24.1%, and up till now, this is 23.6%. Move to the next slide, please, and if you could make it zoom in, please. So these are our new product launches in the GLP segment. We have launched Seglutide in pre-filled syringe and pen form. This is Pakistan's first rDNA biological semaglutide. Then Tirzepatide, again a dual glucose-dependent insulinotropic polypeptide, and glucagon-like peptide 1. So this is, again, as you're all aware, indicated for diabetes management and weight reduction. So this is the latest in our biotech range. And then these are our other product launches. Cobalmin has been launched in a sublingual dosage form. Then Hepanox, Fliximab, and the small ultra. Yeah. And Afrova. So these are our other product launches. So basically, this was a brief presentation of our results and what we are doing. And now I invite you all to share your comments and questions, if any. We'd be glad to answer them. अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही सर आपको? Yes, जी. सर अगर आप शेयर कर सकें कि आपने सेमाग्लूटाइड और टिrzepatide का रेवेन्यू बता सकें अपने लास्ट कुछ मंथ्स का या एनुअली क्या एक्सपेक्टेड आगे? जी, it's upward of $500 million. I can say that. I think नवीद जो 6 दिसंबर की क्लोजिंग के ऊपर जो है मेरा ख्याल है 500 मिलियन का है जी, अब सेमाग्लूटाइड और टिrzepatide जो है, जो टिrzepatide है, वो हमने जनवरी में लॉन्च किया है जी, तो 509 वो आपको रिफ्लेक्ट जी दिसंबर पे 509 मिलियन था सेमाग्लूटाइड और टिrzepatide we are talking about the ballpark number जो कि इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है 500 मिलियन का, एंड टिrzepatide का रेवेन्यू जो है वो
जनवरी से शुरू हुआ है, तो वो नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर रिफ्लेक्ट होगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा आप बता सकते हैं कि आपके अराउंड ये मार्केट कितनी बड़ी है इस वक्त, अराउंड अबाउट कोई मार्केट साइज कितना है इसका, GLP-1 और GIP का इस वक्त का? ओ राइट, देखिए जीएलपी और जीआईपी के अंदर अब दो मॉलिक्यूल्स हैं, सेमाग्लुटाइड एंड tirzepatide। और इसमें जो है वो आपको पता है प्लेयर्स हैं, नोवो नॉर्डिस्क विद semaglutide for Ozempic, and then we have Ferosens, जिनके पास दोनों semaglutide है, tirzepatide है, Mactor जिनके पास दोनों प्रोडक्ट्स हैं, और गेट्स फार्मा। तो ये इस वक्त 4 मेजर प्लेयर्स हैं इंजेक्टेबल में। ओरल के अंदर काफ़ी कंपनियां हैं, और जो है वो और कॉम्पिटिटर्स भी एक्सपेक्टेड टू एंटर इन द कमिंग मंथ्स। अभी इस वक्त जो है वो it is probably less than 10 billion rupees, the total market, but it's rapidly expanding, and because अभी इसके जो यूजेज है amongst doctors और जो adoption है by patients, तो वो डेवलप हो रहा है, एग्रेसिवली डेवलप हो रहा है। तो अभी तो ये this is like the generics, the Mactor and Ferosens and Getz have all entered in the last 2 years. So it's early days. It's just short of 10 million, I think, but I think going forward, I think इसका जो potential है वो hundreds of billions of lakh rupees per annum की sales का है। So it's a very exciting opportunity। आप सब लोगों को मुझसे बेहतर पता है, ग्लोबली भी और पाकिस्तान में भी, and alhamdulillah we are one of the earlier companies to enter this market and establish our brands। अच्छा, आप बता सकते हैं कि ऑन एवरेज आपने कितने पेशेंट्स ऑन बोर्ड कर लिए हैं? क्योंकि मतलब एक पेशेंट अगर लेट से आपका सेमाग्लुटाइड यूज़ करना स्टार्ट करता है तो वो फिर शिफ्ट नहीं करेगा किसी और ब्रांड के ऊपर, तो कितने पेशेंट्स आप इस वक्त कैप्चर कर चुकी हैं थाउजेंड्स के अंदर? कुछ कंपनी 25,000 कैप्चर कर चुकी हैं, कुछ इस तरीके से बताती है वो नंबर्स। इसमें ये है कि हमारे पास पेशेंट्स का हम ट्रैक तो करते हैं, बट जैसे कुछ कंपनीज हैं उनकी, जैसे आई थिंक नोवो है, उसकी जो सारी सेल्स हैं वो उनके एक होम डिलीवरी मॉडल से होती है और उनके हेल्पलाइन से होती है, तो उनके लिए काफ़ी आसान होता है ट्रैक करना पेशेंट्स को। हमारी सेल्स हमारे होम डिलीवरी मॉडल से भी होती है और रिटेल से भी होती है। और रिटेल के अंदर अभी सारी कंपनीज बहुत एग्रेसिवली जो हैं वो प्रोडक्ट को अवेलेबल करा रही हैं, टियर ए टियर बी टाउन्स के अंदर अवेलेबल करा रही हैं। तो इस वक्त जो हमें जो पेशेंट का डेटा मिलता है वो हमें मिलता है 30-40% जो हमारी हेल्पलाइन के थ्रू हमारे साथ चल रहे होते हैं। तो इट्स डिफिकल्ट टू एस्टिमेट, बट अगर हम ये कहें कि और फिर थोड़ा सा उसको ऐसे भी कॉम्प्लिकेट होता है कि वी हैव vials and we have so vials are multi-dose, pre-filled syringes are weekly doses, and then pens are again multi-dose. तो इसकी वजह से I can give you a rough estimate कि it would be more than 20,000 patients, and but it's a number that I would not like you to hold me to, because ये अभी ये define हो रहे हैं numbers. As more data becomes available, as we are able to differentiate availability sales from offtake sales from the pharmacies, from the distributors. But I think कि इसके जो numbers हैं वो मैं आपको जो IQVIA में represent होते हैं, IQVIA की जो publication है उसके अंदर वो पेशेंट्स को एस्टिमेट करते हैं। तो अगर आप हमें ईमेल कर लेंगे तो मैं आपको पूरी कॉम्पिटिटिव स्पेस का बता दूंगा कि IQVIA क्या शो कर रहा है। जी शुक्रिया। इसके अलावा बता सकती हैं कि आपके कितने ब्रांड्स जो हैं वो 1 बिलियन प्लस के हैं और कितने 500 मिलियन प्लस के, कितने 300 मिलियन प्लस के, और उनके नाम भी अगर बता सकें अगर आप कंफर्टेबल हो। जी जी जी, हमारा जो ऑब्वियसली
एक ब्रांड है जिसका ब्रांड नेम है टाइटन, दैट्स लाइफ सेविंग इंजेक्टेबल थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन. तो टाइटन इज more than 1 billion rupee brand. I think it's close to 1.5 billions. फिर उसके बाद हमारा जो नॉर्थ ऑफ 500 मिलियन है, क्लोज टू 500 मिलियन है to 1 बिलियन है, उसमें कोबाल्मिन है, जिसकी अभी हमने एक सबलिंगुअल फॉर्म दिखाई थी न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस में. फिर उसके बाद हमारा जो बायोलॉजिक्स के अंदर और बायोसिमिलर्स के अंदर मैक्टर इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज. तो उसके अंदर हमारा जो एरिथ्रोपोइटिन है, मैकीपो के नाम से वो डायलिसिस में इस्तेमाल होता है, दैट्स क्लोज टू 500 मिलियन रुपीस. IQVIA में ट्रेड में रिफ्लेक्ट होता है, तो दैट्स आल्सो क्लोज टू 1 बिलियन एक्चुअली. IQVIA की रिपोर्टिंग स्लाइटली डिफरेंट होती है, एक्स कंपनी रिपोर्टिंग स्लाइटली डिफरेंट होती है. और उसके अलावा पल्मोनोलॉजी के अंदर हमारे जो इनहेलर्स हैं उसमें वेंटिपोर्ट हमारा एक ब्रांड है, दैट्स क्लोज टू 500 मिलियन. और कौन से नवीद, और ऑब्वियसली सेमाग्लूटाइड, ये जो हैं हमारे सेग्लू और सेग्लूटाइड, ये माशाल्लाह दे आर नॉर्थ ऑफ 500 मिलियन एज नवीद शेयर्ड. एंड I think both the brands, Seglutide and Tirzepatide, are going to be billion in the billion range or higher, inshallah ta'ala, very soon, because उनकी जो growth है वो बहुत fast है. So other than that, we have Esante, Maxima, Germ. they are all north of 500 million. अच्छा, इसके अलावा sorry, पेन please. जी, हेलो जी प्लीज. अच्छा, बता सकते हैं पेन का और प्री फिल्ड जो सिरिंज होती है आपकी, उसका कितना शेयर, मींस पेन कितना सेल होता है, मतलब एक एस्टिमेट लगाने के लिए. कुछ कंपनीज पेन नहीं बनाती हैं, तो एक एज है आपके पास ऑब्वियसली इसके अंदर, मतलब पेन का शेयर कितना है? जो पेन का वेरिएंट है, देखिए टिर्ज़ेट्रिम में तो हमने लॉन्च ही सिर्फ पेन किया है. तो अभी टिर्ज़ेट्रिम जो है वो जो टिर्ज़ेपेटाइड है वो पेन में है. सो दैट्स लॉन्च्ड इन जनवरी. तो अभी मार्च के अंदर जब इसकी अवेलेबिलिटी और ऑफटेक सामने आ जाएगा तो विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू शेयर इसके यूनिट्स और मार्केट शेयर. और सेग्लूटाइड का जो था वो हमने वायल के साथ लॉन्च किया था. तो वायल वाज अ मल्टी डोज वायल, बट ऑब्वियसली उसमें वो एक डिफरेंट फॉर्मेट है जहाँ पे आपको डोज पेशेंट लेवल के ऊपर कस्टमाइज करनी होती है. सो बिकॉज उसके अंदर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप 1.5 निकालें, 1.75 निकालें, 2 मिलीग्राम निकालें. ऑब्वियसली वो जो प्री फिल्ड सिरिंज है या पेन के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती. लेकिन हमारे जो पेन और PFS थे सेग्लूटाइड के, वो आई अंडरस्टैंड सितंबर अक्टूबर में लॉन्च हुए हैं. तो सो अब ऑब्वियसली क्योंकि ये नया फॉर्मेट है पेन, और इसके अलावा एक और एडवांटेज ये है हमारे पास सेग्लूटाइड के अंदर, सेग्लू के अंदर के 1.7 mg एंड 2.4 mg भी जो है वो सिर्फ मैक्टर के पास ये हायर स्ट्रेंथ है. तो ज़्यादातर जो बाकी कंपनीज हैं उनके पास 1 mg तक की स्ट्रेंथ है. तो अगर उसमें किसी पेशेंट को 1.5 mg या 2 mg या 2.4 mg लगाना है तो फिर उनको मल्टीपल ब्रिक्स तो डजंट मेक सेंस. तो ये दो एडवांटेजेस ऑफ हायर स्ट्रेंथ एंड द पेन फॉर्मेट, ये जो हैं ये अपनी जगह बना रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये अभी लॉन्च हुए हैं 3 महीने पहले. इसके अलावा आप बता सकते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इंसुलिन के बारे में अगर कोई प्लान आपका इंसुलिन लॉन्च करने के ऊपर पाकिस्तान में? जी, इंसुलिन वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ ओवरऑल मैक्टर की आप पूछ रहे हैं? जी, मैक्टर की वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ आगे फ्यूचर के अंदर. इसमें जो हमारी ओवरऑल ग्रोथ है 24% की, उसमें से 21% is represented by volume growth. So you can say
out of 24%, only 3% is price variance, and the rest of it is volumetric growth. ओवरऑल कंपनी बेसिस पे है। Yeah, जी। अच्छा, तो इसमें इस तरह से होता है ना कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रोथ हम लोग तीन तरीके से देखते हैं। सो देयर इज प्राइस इंक्रीज, देयर इज वॉल्यूम इंक्रीज ऑन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, एंड देन देयर आर न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस। तो वो जो आपको 20% जो 21% बहुत हाई लग रहा होगा सुनने में, वो इसलिए कि उसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ के अंदर न्यू प्रोडक्ट की भी वॉल्यूम शामिल हो जाते हैं। तो जी। अगर हम न्यू प्रोडक्ट्स को हटाएंगे और सिर्फ देखेंगे कि जो पिछले साल के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स थे उनमें प्राइस इंक्रीज और वॉल्यूम इंक्रीज कितना था, तो वो नंबर थोड़ा डिफरेंट आएगा। तो ये थोड़ा सा क्योंकि आई थिंक लोग इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप किस तरीके से वो वॉल्यूम्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो आई थिंक एग्जिस्टिंग ब्रांड्स पे जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो अराउंड अप्रोक्सीमेटली 11% है। that's and even that mashallah is it's much higher than the industry. Industry has been struggling in the past couple of years, especially has been struggling with unit growth. So alhamdulillah, on that parameter we've performed very well. So that's the question about the volume increase. और आपका दूसरा सवाल क्या था? इंसुलिन के बारे में। हाँ, so yes, insulin, modern insulin is in our pipeline. वो हम जरूर करेंगे और हमारे इसमें जो है वो I think 2027 के अंदर we expect these launches to happen. Having said that, insulin जो है वो type 1 diabetes के लिए important है बहुत, type 2 के लिए भी है, लेकिन I think going forward with the introduction of semaglutide and tirzepatide, and when doctors become more comfortable using these newer class of medicines, insulin replacement होगी, because guidelines के अंदर first world के अंदर तो insulin initiation से पहले ही GLPs को recommend कर दिया गया है, और उसकी वजह ये है कि लॉन्ग टर्म इंसुलिन यूजेज इज नॉट बेनिफिशियल फॉर पेशेंट्स। तो गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक कि इंसुलिन की मार्केट रहेगी, लेकिन अलॉट ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो GLP GIP पे आ रहे होंगे, और उसमें आने के बाद उनको इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ रही होगी। बट इवन देन इट्स अ बिग मार्केट, एंड बिकॉज हम अपने पूरे पोर्टफोलियो के लेवल के ऊपर देख रहे हैं, तो हमारा भी प्लान है इसको लॉन्च करने। अच्छा, बस लास्ट क्वेश्चन है आपका। जैसे बाकी सर्ल है वो कुछ न्यू बायोलॉजिक्स वगैरह लॉन्च कर रहे हैं, एडालीमुब है जो हुमीरा का कॉपी है पाकिस्तान के अंदर, तो आपके कोई प्लान्स हैं बाकी न्यू डिफरेंट बायोलॉजिक्स लॉन्च करने के लिए पाकिस्तान में? जी आदिल, of course, because you know Mactor is one of the first you know the इनिशियल कंपनीज जिन्होंने बायोसिमिलर्स और बायोलॉजिक की स्पेस में इन्वेस्ट किया था, और तो हमारी पाइपलाइन माशाल्लाह बहुत रिच है। अभी भी अगर आप देखें तो वी हैव मोमेंटम व्हिच इज इटनर्सेप्ट, एरिथ्रोपोएटिन व्हिच इज मैकीतो, वी हैव इनहिक्सा व्हिच इज हेपरिन, वी हैव हेपनॉक्स व्हिच इज एनॉक्सिपेरिन, वी हैव पेगलेटेड GCSF। तो हमारे 5-6 बायोसिमिलर्स तो ऑलरेडी इन मार्केट हैं, एंड वी हैव अ very strong biosimilar के range, and these are basically our partnerships with global and leading biosimilar companies. तो हर साल हमारे पास multiple biosimilars हैं, and I think Mactor is considered the you know the top company in terms of new biologic launches. तो गोइंग फॉरवर्ड हम इसके ऊपर और इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कि हर आने वाले क्वार्टर में, हर आने वाले हाफ ईयर में मल्टीपल बायोलॉजिक्स हम लॉन्च कर रहे होंगे। और एडालीम्यूमैब तो बहुत पुराना मॉलिक्यूल है, और ये जो एडालीम्यूमैब और इटनर्सेप्ट है जो कि एसेंशियली इस्तेमाल होते हैं इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड
in psoriasis, in some other indications, इनका ये इतने पोटेंशियल नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि ओरल थेरेपी जो लॉन्च हुई है जैक इनहिबिटर्स की, वो इनके मुकाबले में बहुत इनएक्सपेंसिव है। तो पाकिस्तान का आपको पता है कि आउट ऑफ पॉकेट मार्केट है, तो आउट ऑफ पॉकेट मार्केट के अंदर द कॉस्ट ऑफ थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैक इनहिबिटर्स आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, इनकी जो थेरेपी है फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड फॉर सोरियासिस एंड अदर इंडिकेशन, सिमिलर इंडिकेशंस, वो 10 to 15,000 रुपीस के अंदर पर मंथ कॉस्ट करती है। तो ऑटोमेटिकली इनके लॉन्च की वजह से ये हुआ है कि ये जो क्लास ऑफ बायोलॉजिक्स हैं, एडालिम्यूमैब, और हमारी पाइपलाइन में भी हम भी लॉन्च कर रहे हैं, और इससे जो इसका प्रायर कंपाउंड था एडालिम्यूमैब का, इटरनरसेप, वो हम ऑलरेडी मार्केट में बहुत पहले से हैं। तो ये जो बायोलॉजिक्स थे स्पेस में, इनकी जो है वो अब इतना पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में इतना इनका यूजेज कम होगा, क्योंकि पहली चॉइस डॉक्टर्स की will be the cheaper oral therapies which are as effective. Patients who are unable to tolerate those oral therapies or do not respond to those oral therapies, then they will be considered for the biologics, which are more expensive for these indications. So this is just to give you an idea, but ये कि हमारी pipeline माशाल्लाह oncology, हम सारी स्पेशलिटीज के अंदर जो है वो बायोसिमिलर्स लॉन्च कर रहे हैं, और उसके पीछे हमारी जो इंटेंट है वो ये है कि ये ड्रग्स बहुत इफेक्टिव हैं एज अ होल, एज अ क्लास। पाकिस्तान में इनको सही मानों में प्रमोट नहीं किया गया है, डॉक्टर्स को इनके बारे में अवेयरनेस नहीं है, और जितने पेशेंट्स इन प्रोडक्ट्स पे ऑन थेरेपी होने चाहिए उससे बहुत कम ऑन थेरेपी हैं। तो हमारी नीयत ये है कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ग्लोबली सारी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इन थेरेपीज को आम करें, और डॉक्टर्स को समझाएं कि किस तरीके से इनके पेशेंट्स को बेनिफिट कर सकती हैं, और इनका यूजेज बढ़ाएं। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर भी हमारी जो बायोलॉजिक्स हैं वो एक बहुत ही फास्ट रिदम से लॉन्च होंगी, और ग्लोबली भी इंशाल्लाह ताला डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, दिस इज अब्दुल बासित फ्रॉम एनबीपी फंड्स। मेरे 2-3 क्वेश्चंस है। पहली तो पार्शियली प्रेजेंटेशन में कवर भी हो गई एपीआई प्राइसेस के हवाले से। तो जो रीसेंट डेवलपमेंट्स चल रही हैं ग्लोबल मार्केट्स में, तो एपीआई प्राइसेस में जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड था उसमें क्या हम देख सकते हैं आगे आने वाले क्वार्टर्स में आगे, तो कुछ इसका ब्रीफ कर सकते हैं? आपकी थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आई अब्दुल बासित। आप कह रहे हैं कि जो रिसेंट सिचुएशन हो रही है जी, एपीआई प्राइसेस पे क्या आउटलुक है? जी, डेफिनेटली एपीआई की प्राइसेस में स्पेशली जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, जो केमिकली डिराइव प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर जो है वो इसका इम्पैक्ट आएगा डायरेक्टली, बिकॉज उनकी स्टार्टिंग पॉइंट जो होती है वो पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। और ओवरऑल भी जैसे हम पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं, तमाम ममालिक में जो है वो एक इन्फ्लेशनरी ट्रेंड होगा, और तो उसकी वजह से इनडायरेक्टली जो है वो एपीआई प्राइसेस पे इम्पैक्ट आएगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि डिस्ट्रप्शन जो है वो कितनी प्रोलॉन्ग होती है, बट इन अ प्रोलॉन्ग्ड war of attrition situation, definitely the prices of everything, all inputs are expected to increase. ओके सर, एक और सवाल ये था कि जो अभी हम देख रहे हैं कि सीमाग्लूटाइड के जो पेटेंट्स हैं वो काफ़ी जगह पे एक्सपायर हो रहे हैं इस साल, तो उसका जो है वो मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है कि मार्जिन वाइज या कॉस्टिंग वाइज? और दूसरा सवाल ये भी है कि अभी एक न्यूज़ फ्लो आई थी जिसमें हमने देखा था कि सीमाग्लूटाइड की जो प्राइस फिक्सेशन थी उस पर कोई डेडलॉक अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, नोटिफिकेशन उसका नहीं आया, तो उस पर भी अगर आप ब्रीफ कर दें। सीमाग्लूटाइड की प्राइस फिक्सेशन पाकिस्तान में? जी बिल्कुल। अच्छा, जो मैं पहले कोशिश करता हूँ, जो आपका पहला पॉइंट था कि अब सेमाग्लूटाइड का पेटेंट एक्सपायर हो रहा है पूरी दुनिया में, मतलब इंडिया और चाइना में, तो उससे जो है आई थिंक आल्सो इन द फर्स्ट वर्ल्ड, तो उससे नहीं, मेरा ख्याल है कि हमारी जो सप्लाई एग्रीमेंट्स हैं सप्लायर्स के साथ वो लॉन्ग टर्म हैं, एंड
इंडिया और चाइना के अंदर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस पेप्टाइड एपीआईज वो काफ़ी ज़्यादा है, वो इन्वेस्ट भी बहुत कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी इंडिजिनियस मार्केट्स के अलावा ग्लोबल मार्केट्स को भी उनके जो एपीआई मैन्युफैक्चरर्स हैं वो टारगेट कर रहे हैं. So I don't see a threat in terms of supply. I don't see a threat in terms of pricing. In fact, API pricing should, maintain or gradually go down as more and more players come into the market, manufacturers come into the market. तो ये अलबत्ता ज़रूर है कि अगर गोइंग फॉरवर्ड कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट्स नहीं हुई तो, और चूंकि सेमाग्लूटाइड की और ये जीएलपी जीआईपीस की जो यूजेज है वो दुनिया भर के अंदर बढ़ ही रही है ना, सो द सप्लाई नीड्स टू कीप पेस विद द डिमांड अपटेक. जैसे जब शुरू में लॉन्च हुई थी तो आपने देखा, आपको याद होगा कि वो नॉर्डिस्ट शॉर्ट हो गए थे, वो पाकिस्तान के अंदर सप्लाई नहीं करने पा रहे थे. मोंजारो तो अभी तक पाकिस्तान में नहीं आया. तो ये एक ये जैसे हमने देखा था जब कोविड आया था तो इंसुलिन की सप्लाईज में फर्क पड़ गया था, शॉर्टेज हो गई थी. तो ये ऑनगोइंग जो है वो जो कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट्स हैं इनको मैच करना पड़ेगा बिकॉज इसकी डिमांड अपटेक बहुत फास्ट हो रही है. तो आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी emergent issue right now, imminent issue right now in this regard, but has to be closely followed. Regarding the pricing, I'm sorry, I am not aware because ये जो products हैं ये आपको पता है कि पाकिस्तान की क्लासिफिकेशन में नॉन एसेंशियल में है, तो नॉन एसेंशियल मेडिसिन की तो जो है वो प्राइसिंग कंट्रोल ही नहीं है. तो आई एम नॉट श्योर ऑफ दिस, बट अगर आप कोई इस सिलसिले में कोई रेफरेंस शेयर कर देंगे अपनी क्वेरी का तो फिर आई कैन रिवर्ट बैक ऑन दैट. ठीक है सर, मैं आपसे रिवर्ट कर लेता हूँ इस बारे में. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब. वालेकुम अस्सलाम मुस्तकीम. सर कुछ थोड़े से क्वेश्चंस थे अबाउट, जिस तरह से लास्ट टाइम मैंने आपकी एनालिस्ट ब्रीफिंग अटेंड की थी तो आप लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि सीमाग्लूटाइड की मार्केट कैसे इवॉल्व हो रही है, किस तरह से दिख रही है. तो जस्ट आपने जैसे अभी बताया कि फॉर एग्जांपल आपकी हाफ ईयर की सेल वाज 500 मिलियन फॉर सीमाग्लूटाइड. 10 अरब की टोटल मार्केट है, उसमें से 3-3.5 अरब तो नोवो का है आई थिंक. तो मतलब इज इट सेफ टू से कि 15% मार्केट शेयर है आप लोगों का इस मार्केट के अंदर? हाँ, मेरा ख्याल है अगर I just said कि it's a bit south of 10 billion, it's not exactly 10 billion, but I would say कि यूनिट्स और वैल्यू के अंदर, वैल्यू में यूनिट्स के अंदर हाँ 15 to 20% का फेयर होगा कहना कि हमारा शेयर है. ओके, तो अगर 15% ये है और 3 बिलियन अगर मैं मोटा मोटा करता हूं तो नोवो है, तो बाकी प्लेयर्स कितने परसेंट होंगे? ये 25-30 वाले होंगे या कोई एक बहुत बड़ा होगा, एक छोटा होगा, कैसे होगा? मेरा ख्याल है कि अभी इस वक्त सेमाग्लूटाइड के अंदर फिरोसन्स जो हैं उनकी जो वैल्यू है वो मतलब इन वैल्यू टर्म्स, एंड आई थिंक वैल्यू ही आसान होता है देखने में क्योंकि वो इक्वल काउंटिंग यूनिट बना के उसको देखने से समझ में आता है कि यूनिट्स में क्या है, बिकॉज उनका जो प्रीफिल्ड है वो 4 महीने में 4 इस्तेमाल होते हैं. एक वाइल जो होता है वो 4 to 6 वीक्स तक भी लास्ट करता है. तो जैसे अगर हमारा एक वाइल है 2 mg का तो मरीज उससे 0.25 mg के 4 डोजेस भी लेगा और 0.5 mg के 2 डोजेस भी लेगा. तो वाइल इज लाइक 6 प्रीफिल्ड सिरिंजेस जो कि पर वीक जा रहे हैं. तो वो थोड़ा सा है, लेकिन आई थिंक अगर हम मोटा देखें तो in terms of value, Novo Nordisk would have the highest share in terms of price. So let's say they are 40% to 45%, followed by Ferosans, जिनका 25% होगा, and then 15% gets का और Matrix होगा, something like that.
ओके, मेक सेंस। सर, आप लोगों ने जिस तरह से मुझे समझ में आई बातें कि होम डिलीवरीज भी होती हैं, मतलब कुछ पेशेंट डॉक्टर ड्रिवन पेशेंट्स भी हैं सीमा में, और फिर कैजुअल डिमांड भी है जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं। एम आई करेक्ट इन अंडरस्टैंडिंग इट? और अगर ये सही मेरी अंडरस्टैंडिंग है तो आपने, क्योंकि एक आध साल से आप ये काम कर रहे हैं, तो आपने इसको इवॉल्व होते हुए कैसे देखा है? इज इट कमिंग मोर फ्रॉम द डॉक्टर साइड? क्योंकि शुरू शुरू में तो कैजुअल पेशेंट्स बहुत थे ना पाकिस्तान में, तो लोगों की मार्केट पीपल से इट्स ऑल कैजुअल। बट अगर ये आपने इवॉल्व होते हुए कैसे देखी है लास्ट एक साल के अंदर कि अब डॉक्टर्स आर प्रिस्क्राइबिंग मोर, द शेयर ऑफ डॉक्टर प्रिस्क्राइबिंग दिस मेडिसिन इज इंक्रीजिंग, या कैजुअल इज स्टिल हायर, या वट एवर द नंबर यू हैव? जस्ट आई वांट टू अंडरस्टैंड द मार्केट डायनेमिक्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। मेरा ख्याल है कि देखिए, ये तो जो आपका जो पॉइंट है ना, वो ये कि इन प्रोडक्ट्स का इतना ज़्यादा कंज्यूमर इंटरेस्ट था इवन लॉन्च होने से पहले, बिकॉज दुनिया भर के अंदर ये प्रोडक्ट्स थे, पाकिस्तान में बाद में आए, एंड दे वर बीइंग लेबल्ड एज फिनोमिनल ड्रग्स। एंड मैं अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ ओबेसिटी के पर्सपेक्टिव से, राइट? So there was a very large interest of people who are not only obese people, but just people who want to lose weight, right? तो उनका तो इंटरेस्ट था इस पे। तो बट ये दवाई ऐसी नहीं है कि आप खुद जाके इसको लेके शुरू कर दें, राइट? सो दैट इंटरेस्ट वुड मीन दैट पर्सन इज गोइंग टू ए डॉक्टर, एंड देन दैट डॉक्टर इज एक्सप्लेनिंग टू दैट इंडिविजुअल कि आपने कैसे लेना है, कैसे अपनी डाइट को हैंडल करना है, कैसे अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं ट्रीटमेंट के, आपने जो है वो साइड इफेक्ट्स को कैसे हैंडल करना है, कितने अरसे के लिए लेना है। तो so the consumer interest, I think, is majority channeled through some physician. It's not a drug which can be just used like that, right? तो जो भी प्रिस्क्रिप्शन आ रही है, और जैसे हमारी हेल्पलाइन है, तो हम डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर जो है वो सप्लाई नहीं करते। सो वी हैव टू हैव अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ऑन द बैक ऑफ एनी पेशेंट हु अप्रोचेस अस। तो एक तो पॉइंट ये है कि सो इट्स डिफिकल्ट टू से कि कितने लोग ऐसे हैं जो खुद जाके डॉक्टर से कह रहे हैं कि आप हमें इसको शुरू करें, वर्सेस डॉक्टर सेइंग कि नहीं, यू नीड टू स्टार्ट दिस ड्रग। तो आई थिंक ये थोड़ी सी रिसर्च जो है ना, वो उस तरीके से मेरे पास इसका जवाब नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि जैसे एवोल्यूशन की आप बात करें, तो इसकी एवोल्यूशन जो पेशेंट वेट लॉस के लिए लेते हैं, तो वो उनकी स्टे ऑन थेरेपी कम होती है, बिकॉज वो अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि इतने टाइम में हमें इतना वेट लूज करना है डॉक्टर के साथ मिलके। तो फिर वो उसको इस्तेमाल करेंगे, फिर उनका वेट अचीव हो जाएगा, फिर वो छोड़ देंगे। तो आमतौर पे 3 to 6 months के अंदर जो है वो जो वेट लॉस ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो जाते हैं मेजॉरिटी लोगों के। तो पेशेंट्स ऑन वेट लॉस, उनका ड्यूरेशन कम होता है। पेशेंट्स जिनको आप डायबिटीज के लिए दे रहे हैं, उनके लिए तो फिर ये लाइफ लॉन्ग है। लेकिन हमने अभी ये देखा है कि इवन जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसको अभी इंसुलिन रिप्लेसमेंट के ऊपर उतना नहीं लिखा है। उन्होंने भी इसको टैग किया है कि अच्छा, मेरा ये ओबीस डायबिटिक पेशेंट है, लेट मी टेक केयर ऑफ हिज वेट, एंड इफ दैट वेट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड इन 3-4 months, तो वो फिर शिफ्ट कर जाते हैं बैक टू ओरल थेरेपीज। तो एक डायनामिक ये है कि विद टाइम डॉक्टर्स विल यूज इट फॉर लॉन्गर पीरियड, एंड फिर जो स्टे ऑन थेरेपी है वो बढ़ता जाएगा। ये एक फर्क है। दूसरा जो फर्क इसके अंदर आ रहा है वो ये कि जब हमने लॉन्च किया था, तो आप समझें कि मुल्क में मे बी 1000 डॉक्टर्स had prescribed, and that definition was कि अगर एक साल में एक मरतबा भी लिखा है आपने, but only about 150 doctors were prescribing on a regular basis. तो अब ये जो डायनामिक है डॉक्टर्स का, अभी चेंज हो रहा है। कंपनीज प्रमोट एज वी गो एंड टॉक टू डॉक्टर्स, एक्सप्लेन, एंगेज विद देम, उनके क्या कंसर्न्स हैं, उनके अच्छा, पेशेंट्स की भी इसमें काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप पेशेंट्स को काउंसिल नहीं करें तो वो उनका स्टे जो होता है थेरेपी में वो बहुत वेरिएबल होता है। तो इस तरीके से यानी कि द एडॉप्शन बाय द डॉक्टर्स इज इंक्रीजिंग, दैट्स वन एवोल्यूशन, एंड विद इन द प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर्स the evolution of
writing it in more indications. So that is also taking place. So that's also a journey which is happening. तो एंड ये आगे चलती रहेगी बिकॉज इसमें बहुत गैप है. आप सोचे ना कि मुल्क में इतने सारे डॉक्टर्स हैं जो कार्डियो मेटाबॉलिक को फॉर एग्जांपल ट्रीट करते हैं, और कितने फिजिशियंस हैं, और ओबेसिटी हर डॉक्टर के पास आता है. अभी तक बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि दे आर अ बिट रिलक्टेंट टू ट्राई. सो आपको पता है ना वो पिरामिड ऑफ एडॉप्शन जो होता है उसमें कुछ तो होते हैं जो कि डॉक्टर होते हैं, एंड देन देयर आर सम who come on board after a little bit time, वो कुछ फिर बहुत देर में आते हैं. तो ये प्रोसेस चल रहा है. और मेरा ख्याल है कि सॉरी प्लीज नहीं, सॉरी आसिफ साहब, I'm sorry to break you off. I'm sorry to break you off. You can continue. मैं just एक चीज में ऐड कर दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर्स लेते हैं तो आपके पास कोई एक रिपीट रेट का नंबर होगा, या फिर आपके पास ये नंबर होगा जो कि किसी और जैसे फिरोज सन्स थे या गेट्स के पहले पेशेंट थे वो, and now they are coming to you. Does it happen or does it not happen? ये तो बहुत होता है. जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जो 1 mg के डोज पे थे, और 1 mg के डोज के अंदर अब उनकी जो वेट लॉस ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो रहा, और वहाँ पे स्टैग्नेंट हो गई है. अच्छा, हमारे पास हायर डोज है तो डॉक्टर्स जो है ना वो उस पेशेंट को फिर हायर डोज में कर देंगे. ऐसा भी होता है कि चूंकि ये अभी 6 महीने के अंदर ही जो है, मतलब साल 1.5 साल के अंदर ही जो है वो जेनरिक लॉन्च के साल 1.5 साल के अंदर ही टिrzepatide आ गई, टिrzepatide जैसे जो हमारी है. तो एक क्लास शिफ्ट भी हो रहा है. ये कोई मरीज है जो कि ओज़ेम्पिक पे थे और ओज़ेम्पिक के अब डोज पे उनका रिजल्ट स्टैग्नेट हो गया है, तो डॉक्टर ने उनको शिफ्ट कर दिया हमारे टिrzepatide के ऊपर. तो ये चीजें चल रही हैं. ये बिल्कुल ऐसे हो रहा होता है. So I think कि हायर डोजेज के लिए शिफ्ट हो रहे होते हैं और बेटर क्लास ऑफ मेडिसिन के लिए भी शिफ्ट हो रहे होते हैं. तो इसी तरीके से आई एम श्योर हमारी भी जो पेशेंट्स, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे टिrzepatide को लॉन्च करने में, तो हमारे जो सेग्लुटाइड के जो पेशेंट्स थे उनमें से कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होंगे जो फिर फिरोसन्स और गेट्स के पास उनके टिrzepatide पे चले गए होंगे, राइट. सो अब क्योंकि ऑप्शंस आ रहे हैं और डॉक्टर्स अपने और पेशेंट्स अपने वेट लॉस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से फैसला कर रहे हैं. अब कन्वीनियंस है. अब अगर पेन अवेलेबल हो गया है, पेन इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू यूज दिस ड्रग, राइट. सो अफोर्डिंग पेशेंट्स वुड से कि यार मैं 4 इंजेक्शन खरीदता हूँ और फिर मुझे जो है ना तो मैं एक पेन रख लेता हूँ. तो इस कन्वीनियंस की वजह से भी लोग जो है वो शिफ्ट होते हैं. वाइल्स का इस तरीके से होता है कि I'll give you a live example. एक पेशेंट है वो 2 mg का डोज टॉलरेट नहीं करने पा रहे, और लेकिन 1.5 mg से वो ज्यादा बढ़ना चाहते हैं. तो अब वो प्रीफिल्ड सिरिंज में या पेन के अंदर आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन वाइल के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप उसको 1.75 mg भी ट्राई कर सकते हैं. तो इसमें गेम सारा यही है ना कि मतलब ऑप्टिमाइजेशन डोज की ये है कि टेक इट टू द मैक्सिमल टॉलरेबल डोज so that you get the best possible results. तो वो जो डोज माइक्रो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो वाइल दे रहा है, तो कुछ पेशेंट डॉक्टर्स के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है. बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो कि अपने पास डिस्पेंस करते हैं, यानी कि उनके पास जो पेशेंट क्लास आती है वो इस तरह की होती है कि वो उनसे आके लगवाते हैं. तो उनके लिए वाइल फिर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज फिर वो वाइल से जो है वो डोज भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और ज्यादा लोगों को ट्रीट भी कर सकते हैं उससे. तो ये सारे डायनामिक्स चल रहे होते हैं. तो शिफ्टिंग होती है, बिल्कुल होती है. Makes sense. So, थोड़ा ऐसा फीलिंग आती है कि विद द टाइम पासेस एंड लोगों की एडॉप्शन शुरू होगी, उसमें देयर इज गोना बी अ क्लियर विनर इन टर्म्स ऑफ हाउ डू यू डिस्पोज दिस ऑफ. So, आपके अभी अंदाजे के मुताबिक द डेटा यू हैव, व्हाट डू यू थिंक विल हैव द हाईएस्ट शेयर? प्रीफिल्ड का होगा, वाइल्स का होगा, या पेन का होगा? That's a very good question. So देखें जो आई थिंक जो क्लास ऑफ पेशेंट्स हैं जो कि इतना प्राइस सेंसिटिव नहीं है, तो उनके लिए तो पेन इज द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म, राइट. पेन को स्टोर करना, पेन को लगाना,
एंड आई थिंक कि ऐसे पेशेंट्स जो कि constrained हैं in terms of their ability to buy the monthly treatment in one go, or who want flexibility in their cash flow, would maybe prefer the pre-filled option, because pre-filled option के अंदर जो है वो आपका जो है वो जो परचेस वन टाइम परचेस कॉस्ट है वो कम है. सो एंड देन आज जो है वो जो लेट्स से जो अभी जो पेनिट्रेशन है वो तो ऑब्वियसली अफोर्डिंग क्लास में ज़्यादा हो रही है, राइट. एंड देन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो ग्रेजुअली टिकल डाउन कर रहा है एज डॉक्टर्स बिकम convinced to use it, and prices will also fall, right. So as competition comes, so फिर price गिरती है. तो I think कि इसमें ना मेरा ख्याल ये है कि you have to have all the options, because it's an offering package which gives the flexibility to the doctor and to the patient. So I think to be successful, you have to have all options. One of them would make more sense for a given patient, and the other one would make more sense to the other. So I think from a company's perspective, and if anyone wants to be a significant player and to dominate the market, I think all forms should be available ताकि डॉक्टर्स के पास ऑप्शंस हो उनके पेशेंट्स के लिए. दूसरा, सारी थेरेपीज होनी चाहिए आपके पास, मतलब सेमाग्लुटाइड भी होना चाहिए, टिrzepatide भी होना चाहिए, और उसके बाद जो भी नए इसके अंदर आ रहे हैं, ओरल्स आ रहे हैं, और जो एडवांस ड्रग्स आ रहे हैं, तो आप कंसिस्टेंटली उनको लेके चलेंगे तो आप अपनी जो है ना वो पोजीशन को मेंटेन करेंगे इन एन इंक्रीजिंग सिचुएशन, मतलब इंक्रीजिंगली कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, बिकॉज एवरीवन इज सेइंग yeah, this is the space to be in, not just in Pakistan but globally. सर वैसे ये कॉस्ट ऑफ पेन क्या होती है? पहले अगर थोड़ा सा आप ये बता दें कि आप ये जो पेन जो आपने लॉन्च किया उसकी प्राइस क्या है, कितने में बेचते हैं आप, और कॉस्ट ऑफ पेन क्या होती है, मतलब कि हाउ डिपेंडेंट और कितना इसकी सप्लाई चेन इंपॉर्टेंट होती है? पेन के रॉ मटेरियल्स दे कम फ्रॉम चाइना या पूरी पेन बन के आती है? हाउ डज इट हैपन? ये पेन का थोड़ा सा मुझे अगर आप एक्सप्लेन कर दें आपके लिए या पूरी इंडस्ट्री के लिए. जैसे वाइल है या प्रीफिल्ड सिरिंज है, या अब वाइल के अंदर आपको पता है एक ग्लास का वाइल है, उसके ऊपर एक उसका बंद होता है और उसको कंटेन करने की लिड होती है. ये जो इसको हम प्राइमरी पैकेजिंग बोलते हैं, तो ये इंपोर्ट होती है. आप दुनिया भर से कहीं से भी कर सकते हैं, चाइना से और यूरोप से. आई थिंक सबसे अच्छे जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ से हैं. जब आप प्रीफिल्ड सिरिंज में बात करते हैं तो इंस्टेड ऑफ द वाइल व्हाट यू आर गेटिंग इज द सिरिंज कंटेनर, और आपकी मशीन उस सिरिंज कंटेनर के अंदर उस ड्रग, अगेन तो इट्स नॉट अ वाइल बट अनदर कंपोनेंट, प्राइमरी पैकेजिंग कंपोनेंट जो कि बाहर से आ रहा है. पेन के अंदर दो चीजें हैं. पेन के अंदर एक कार्ट्रिज होता है, एक छोटा सा वाइल, और फिर उसकी एक डिवाइस होती है, वो जो पेन इटसेल्फ होता है. तो जो पेन और जो कार्ट्रिज हैं वो मिलके फिर वो पेन की शक्ल इख्तियार करते हैं. तो ये सारे मटेरियल्स प्राइमरी पैकेजिंग के इंपोर्ट होते हैं, और इट्स अ वेरी बिग मार्केट. आज से नहीं है, बिकॉज इंसुलिन्स के अंदर भी इस्तेमाल हो रहे हैं, दूसरे बायोलॉजिक्स के अंदर भी इस्तेमाल हो रहे हैं. तो दिस इज द स्टैंडर्ड एप्लीकेशन डिवाइस. तो इसके अंदर ऑब्वियसली आपको यू हैव टू बी कॉस्ट का कोई अंडरस्टैंडिंग है कि एक पेन कितने में बनती है? अंडरस्टैंडिंग कुछ देखिए, आप उसको ऐसे देखें ना कि जो पेन का जो पूरा सेट है, जिसके अंदर उसकी कार्ट्रिज है, या जिसका उसका जो प्लास्टिक कंटेनर जिसके अंदर वो पेन होगा, और फिर वो जो सिरिंज है उसके साथ, वो सारी की सारी चीजें, ये सारा वॉल्यूम डिपेंडेंट होता है. कि ये वॉल्यूम के ऊपर जो है ना, जितना ज्यादा वॉल्यूम है आपका उतना ज्यादा आपको प्राइस मिलेगी. एंड देन फिर आपकी स्पेक्स के ऊपर होता है. तो अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आई थिंक अब तो AI सर्च के अंदर आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा, बट I would think this is going to be somewhere in the range of $2, $3, $4 का आपको जो है ना ये सेट मतलब इंपोर्ट आप करने पाएंगे, even at reasonable quantities, not high quantities. तो what I understand, बाहर से बन के आ रहा है एंड आप लोग इसको बेच रहे हैं बिल्कुल स्ट्रीट लैंग्वेज के अंदर. पेन यहाँ पे बन नहीं रहा है. नहीं, मतलब वो देखिए, जैसे वाइल है और उसके अंदर दवाई है.
जो दवाई है वो तो हम बना रहे हैं और उसके अंदर हम फिल कर रहे हैं। तो इन PFS के अंदर भी और पेन के अंदर भी दवाई तो हम ही फिल कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक है। जो प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं वो इंपोर्ट हो रहे हैं। ओके, तो असेंबली काइंड ऑफ, बिकॉज थोड़ा सा ऑफ हूं मैं इस चक्कर पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, असेंबली पेन की यहाँ होती है या पेन बाहर से आती है, ये फिल द दवाई ने? नहीं नहीं, ऐसे मतलब उसके कंपोनेंट्स आते हैं, आप कार्ट्रिज के अंदर मेडिसिन भरेंगे, फिर कार्ट्रिज को आप प्लेस करेंगे इनटू द पेन, द प्लास्टिक कंटेनर उसका, तो हाँ कंपोनेंट्स आ रहे हैं। और जो आप दवाई मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो एक्चुअल ड्रग है वो हाँ आपने मैन्युफैक्चर हाँ। की, वो आपने फिल की उसके कार्ट्रिज के अंदर, और फिर वो कार्ट्रिज आपने प्लेस किया इनटू द पेन असेंबल, तो फिर वो असेंबल हो गया और पूरी प्रोडक्ट बन गई। ओके, एंड दिस इज ट्रू फॉर द एंटायर इंडस्ट्री कि जी, जी। मतलब जो हाँ, अगर कोई लोग कह रहे हैं कि पेन यहाँ पे बनेगी, तो वो पेन यहाँ पे बनेगी नहीं, बाहर से पार्ट्स आएंगे, असेंबल होगा, दवा यहाँ से डलेगी और फिर वो पेन मार्केट में चली जाएगी। जी, अब कल को हो सकता है कि जब चाइना के अंदर, सॉरी डॉक्टर साहब आप कुछ कह रहे हैं। हाँ सॉरी, मैं ये कहता जस्ट टेक इट एज ए पैकेजिंग कंपोनेंट. पेन इज अ पैकेजिंग कंपोनेंट. तो जो वी आर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स, वी आर नॉट द पैकेजिंग कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स. दैट गोज फॉर एवरी प्रेजेंटेशन. अगर आप ब्लिस्टर भी लेंगे तो ब्लिस्टर की फॉइल हम नहीं बनाते, पीवीसी हम नहीं बनाते. हम तो सब तमाम पैकेजिंग कंपोनेंट्स इंपोर्ट करते हैं और उसको ब्लिस्टर की फॉर्म में बनाते हैं. बट वी प्रोड्यूस मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, ड्रग्स. तो इस फॉर्म में भी हम मेडिसिनल जो ड्रग है वो हम प्रोड्यूस करते हैं. तो अब वो प्रेजेंटेशन उसकी PFS है. देखिए, आप ये भी कह सकते हैं जो प्रीफिल्ड सिरिंज है वो तो बाहर से इंपोर्ट होती है, बिकॉज वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग दैट प्रीफिल्ड सिरिंज, वी आर प्रोड्यूसिंग द ड्रग. तो वी आर जस्ट फिलिंग इट आउट इनटू इट. थैंक यू यही डॉक्टर थोड़ा सा साहब, थैंक यू डॉक्टर डिफरेंस साहब। है. हाँ, तो इसलिए असेंबली में और आप जो फर्क ले रहे हैं एक ऑटोमेटिव असेंबली और असेंबलर और मैन्युफैक्चरर का, तो वी आर द मैन्युफैक्चरर्स, बट वी आर मैन्युफैक्चरिंग द ड्रग एंड देन producing it and presenting it and filling it in the packaging components. That can be anything else or everything else. ठीक है, दैट मेक सेंस। आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन आसिफ साहब, फिर ट्राइजेप्टाइड का अगर कोई और किसी का क्वेश्चन है तो प्रॉब्ली ही विल बी गोइंग इनटू इट। सर, ये जो FDA अप्रूवल होता है, जस्ट अ वेरी ब्रॉड क्वेश्चन, अगर एक कंपनी के पास FDA अप्रूवल उसकी पैकेजिंग पे लिखा हुआ है एंड लेट्स से द फर्स्ट मार्केट जो नोवो ने भी हासिल की वो सोशियो इकोनॉमिक क्लास ऐसी है B+ और मे बी A क्लास, जो कि दे आर विलिंग टू पे। सो अगर किसी एक कंपनी के डब्बे के आगे लिखा है FDA अप्रूव्ड और बाकी 3 कंपनीज हैं जिसके आगे ऐसा कुछ नहीं लिखा है, सो डू यू थिंक दे विल बी एबल टू टेक अ लॉट मोर मार्केट शेयर? दे विल बिकम, क्योंकि जो प्राइसिंग है वो प्रोबेबली इन लाइन, डू यू थिंक दैट्स गोना हैपन और दैट्स नॉट गोना हैपन, दिस इज टू मच? एक एंड एक्सपोर्ट के मामले में जब मैंने लास्ट आपकी एनालिस्ट ब्रीफिंग अटेंड की थी तो वी आर वेरी बुलिश ऑन एक्सपोर्ट, अफ्रीका, सेंट्रल एशियन कंट्रीज। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? जी नहीं, बिल्कुल। जो पहला आपका सवाल है ना, वो देखिए, एक पेशेंट क्लास ऐसी है जो कि जो एक हाई लेवल व्यू लेते हैं और वो कहते हैं कि नहीं यार, दिस इज आवर हेल्थ एंड वी विल ओनली बाय एन MNC ड्रग, राइट? सो in your family, in your friend circle, you will have, this is a very small percentage of our population, right? Maybe it's 1 or 2% of the population. तो वो पॉपुलेशन जो है, वो का कंज्यूमर क्लास जो है, वो MNC के ब्रांड और उस ब्रांड के साथ जो एक उनको ग्लोबल ब्रांड का इमेज और जो ट्रस्ट और क्वालिटी का इमेज है ना, वो इनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसी क्लास के लिए हम कितना भी टॉप ऑफ द लाइन पेन ले लें या PFS ले लें या कुछ भी ले लें, उनका एक डिसीजन मेकिंग पैरामीटर डिफरेंट है। तो वो क्लास, एंड एक्चुअली अगर आप देखें ना, पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है उसमें जो मल्टीनेशनल्स हैं, वो why as generic companies they could not compete in Pakistan because जिसका पेटेंट ऑफ हो गया और जिन ड्रग्स को नेशनल कंपनीज ने लॉन्च कर दिया, तो थोड़े अरसे में डॉक्टर रियलाइज कर लेते हैं यार क्वालिटी तो सेम ही है। तो क्वालिटी में इतना फर्क नहीं होता है या बिल्कुल भी नहीं होता है, और लेकिन वो ब्रांड, तो वो इसी वजह से आपने देखा कि मल्टीनेशनल्स का जो शेयर है वो एक जमाने में जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तो 75-80% होता था, अब वो 15-20% रह गया। So this is a normal thing in developing countries, So इस ड्रग के अंदर भी ऐसा ही होना है कि there will be a small class जो कि sorry आसिफ साहब, I was not comparing Novo with the biosimilars.
आई वाज टॉकिंग अबाउट कि अगर फिरोज के प्लांट को एफडीए मिल जाता है एंड वो अपने बॉक्स पे एफडीए लिखते हैं, द परसेप्शन डॉक्टर्स एंड द परसेप्शन ऑफ पेशेंट्स टुवर्ड्स दैट ड्रग। देखिए ना, अगर आप एक ही प्राइस की ऑफरिंग्स हैं, जैसे मैक्टर, फिरोसन्स और गेट्स, उनकी एक प्राइस की ऑफरिंग है और एक कंपनी कह रही है कि मेरा एफडीए अप्रूव्ड है, यानी कि मैं जो हूँ वो मेरा अच्छा एफडीए अप्रूव्ड के भी जो है ना वो नुआंसेस हैं। फॉर एग्जांपल, क्या आपकी ये जो ड्रग आप बेच रहे हैं ये यूएस एफडीए अप्रूव्ड है, या आप ये कहना चाह रहे हैं जिस प्लांट पे आप बना रहे हैं वो एफडीए अप्रूव्ड है? नहीं, प्लांट तो एफडीए अप्रूव्ड नहीं होते। एफडीए अप्रूव्ड और यूरोप अप्रूव्ड जो होती है ना, वो हमेशा ड्रग्स होती हैं। तो ये एक टेक्निक होती है जो कंपनियां इस्तेमाल करती हैं ले पीपल के लिए। फॉर एग्जांपल, इट वर्क्स, डजंट वर्क technically. The US FDA or EU or WHO does not approve plants. They will approve the drugs. और वो drugs होते हैं जो आप जाके वहाँ पे अप्लाई करते हैं। आप कहते हैं कि जी मुझे यूएस में बेचना है, वो कहते हैं अच्छा आपको बेचना है, आप अपना डोजियर भेजें। वो आपको डोजियर देखेंगे, आपकी स्टडीज की क्वालिटी देखेंगे, वो फिर आपको हो सकता है प्लांट भी आके विजिट करें। तो देन यू कैन से कि जी मेरी एक ड्रग यूएसए में अप्रूव्ड है, तो आप समझें कि मेरा सिस्टम अच्छा होगा तभी अप्रूव्ड है, राइट। कंपनियां ये भी करती हैं कि वो कहती हैं कि जी मैं जिस मैन्युफैक्चरर से एपीआई ले रहा हूँ वो यूएसए में अप्रूव्ड है, या उसकी कोई और प्रोडक्ट यूएसए में अप्रूव्ड है। तो एक्चुअली ये सारे डिफरेंशिएशन के पॉइंट्स होते हैं जो कंपनीज इस्तेमाल करती हैं अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए फ्रॉम कंपटीशन। एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई भी ये टैग लगाता है, फॉर एग्जांपल इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की कोई कंपनी फिरोसन्स, मैक्टर, गेट्स जो है वो अपना ये जीएलपी प्रोडक्ट किसी यूरोप में, अमेरिका में अप्रूव करा लेते हैं इंशाल्लाह ताला, और जब वो पाकिस्तान में बेचेंगे तो डॉक्टर्स डेफिनेटली कहेंगे यार ये ड्रग में जो है मतलब ऐसा क्यों है कि बाकी लोग नहीं हुए, ये हुए, तो उसका एच तो आएगा। बट एट द एंड ऑफ द डे दे विल आल्सो लुक एट द प्राइस and their experience of the other drugs which they are using, right? सेम थिंग मल्टीनेशनल भी जब आके बोलती है कि जी मेरी क्वालिटी है, तो वो यही कह रही होती है ना कि देखें मैं तो पूरी दुनिया में बेच रही हूँ और मेरी जो ड्रग है वो एक इंटरनेशनल क्वालिटी की ड्रग है। आप कहते हैं हाँ ठीक है, अब उसकी प्राइस ज्यादा होती है तो वो प्राइस और क्वालिटी का जो रेशियो है वो उसके पेशेंट के लिए मैच नहीं करता, तो कहता है कि ठीक है जो मेरे अफोर्डिंग पेशेंट होंगे उनमें इस्तेमाल करूंगा। थ्योरेटिकली अगर कोई कंपनी ये सेम प्राइस के ऊपर ये कहती है और ये प्रूव करती है कि जी हम एफडीए अप्रूव्ड हैं, हमारी ये ड्रग एफडीए अप्रूव्ड है, तो डेफिनेटली उसको एक एज मिलेगा। इसमें देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। तो आर यू गाइस आल्सो वर्किंग ऑन सिमिलर लाइंस या कोई और? फिरोज, बिकॉज़ फिरोज का तो हमने सुना है कि दे आर वर्किंग ऑन सम एफडीए स्टफ। आर यू, और आपको इंडस्ट्री में किसी और के बारे में पता है कि कोई कर रहे हैं? और देखिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारी जो फैसिलिटीज हैं टू प्रोड्यूस दीज बायोसिमिलर्स और बायोलॉजिक्स, ये हमने उनको डिजाइन और इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट इसी इंटेंशन और नियत से की है कि हम उनको ग्लोबली बेचें। और हमारी जो इंटरनेशनल जो पूरा प्लान्स हैं, स्ट्रेटेजी है, वो प्रेडिकेट ही इस पे है कि जी हमारी फैसिलिटी और हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे डोजेज उस क्वालिटी के। अब हम एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर पेटेंट सिचुएशन ईजियर होती है, यू गेट इनटू दोस, राइट। तो इट्स लोअर हैंगिंग फ्रूट। पर अब फॉर एग्जांपल आप सोचें कि आपको यूएस एफडीए में जाना है, तो यूएस एफडीए के अंदर आप ये एज्यूम करें कि चाइना की टॉप कंपनीज, इंडिया की टॉप कंपनीज जो हमसे 10-10, 20-20, 50-50 गुना बड़ी कंपनियां हैं, वो उन मार्केट्स के लिए वाई करती हैं, राइट। सो सिप्ला ने इंडिया में लॉन्च किया है, तो सिप्ला वुड बी बाइंग फॉर द यूएस मार्केट। चाइना की जो टॉप कंपनीज हैं वो वाई कर रही होंगी। तो हम क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स और अपनी अप्रोच में तो सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे, लेकिन ये कि हमारा फोकस वो मार्केट्स हैं जहाँ पे
वी हैव अ बेटर चांस ऑफ सक्सेस। तो एक तमगा लगाने के लिए तो एक अलग बात है कि कोई बोले कि जी कोई भी कंपनी बोले, बहुत सारी कंपनी बोलती है हमने WHO अप्रूवल करा लिया। अगर आप उनसे पूछेंगे कि WHO अप्रूवल कराने के बाद आपकी सेल्स कितनी है या उस सेल्स में रेवेन्यूज में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, वो एक बिल्कुल अलग सवाल है इसका। सो हमारा एग्रेसिव प्लान इंटरनेशनलाइजेशन का है। फर्स्ट वर्ल्ड मार्केट्स जो हैं वो एक देखिए एवोल्यूशन का प्रोसेस है। हमें आप जंप नहीं कर सकते, राइट? सो यू हैव टू learn how to start walking fast, running, then taking part in international competition. तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी कंपनीज का जो है वो it will take a bit of time, but definitely it will happen. हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं और कंपनियां भी कोशिश कर रही हैं, it will happen, but I don't think it's happening anytime soon. Asif Saab, it's always great to attend analyst briefing जिसमें आप जवाब दे रहे होते हैं. And the kind of answers that you give and the kind of understandings that you provide is outclass. So just wanted to thank you, sir. Shukriya Mustaqim, thank you so much, very kind of you. So, any other? I don't think they are. I don't see any raised hands. आसिफ साहब, वो आपने कहा था आप ईमेल एड्रेस बता देंगे, if you can just write it down on chat, अगर आपका कोई ईमेल एड्रेस है तो, so just मैं डाल देता हूँ. And Asif Saab, sorry, अगर आपके पास 5 मिनट और हैं and nobody else has a question, so if you can just brief a little about trizeptide versus semaglutide. कितनी बड़ी मार्केट हो सकती है ट्राइजेप्टाइड की, trizeptide versus the semaglutide? What do you think is the next thing happening in the next 2-3 years in Pakistan with respect to this drug? Semaglutide से ज़्यादा if semaglutide, for example, leads to a 15% weight loss, tirzepatide leads to a 20% weight loss on the same time period, right? So it is more powerful for losing weight. Semaglutide का अभी एडवांटेज ये है कि semaglutide क्योंकि पहले मार्केट में था, तो जो आउटकम स्टडीज हैं, आउटकम स्टडीज का मतलब ये होता है कि ठीक है आपने वेट तो लूज किया, लेकिन उस वेट लॉस से पेशेंट को बेनिफिट क्या मिला। तो सेमाग्लुटाइड की वो स्टडीज हैं जो ये शो करती हैं कि कार्डियोवैस्कुलर मॉर्बिडिटी या कार्डियोवैस्कुलर एडवर्स इफेक्ट्स कम हैं, significantly कम है. So now that's a big advantage. It's not just that you have proven that the patient is losing weight, but you've also proven that using semaglutide, the patient के जो adverse effects हैं like heart attacks या मतलब दूसरे जो negative outcomes हैं cardiovascular के, वो कम हुए हैं. तो इनको outcome studies बोलते हैं. इसी तरीके से किडनी के ऊपर जो है वो जो इनकी आउटकम स्टडीज हैं वो डेमोन्स्ट्रेट कर रही हैं कि पेशेंट्स के एडवर्स इफेक्ट्स कम होते हैं. तो दैट्स रियली इम्पोर्टेंट. वेट लॉस इज एन एडवांटेज, बट द बेनिफिट इज कि हाउ डू योर हेल्थ आउटकम्स इंप्रूव. तो सेमाग्लुटाइड को ये एडवांटेज है कि सेमाग्लुटाइड के पास ये आउटकम स्टडीज मौजूद हैं, और टिrzepatide के पास ये एडवांटेज है कि टिrzepatide से वेट ज्यादा जल्दी लूज हो रहा है and outcome studies are on the way. तो जब तक outcome studies are on the way, तो अब ये physician मैंने 2 किस्म के देखे हैं. कुछ जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, अगर मुझे सिर्फ plain weight loss करना है तो मैं tirzepatide को पसंद करूंगा, लेकिन अगर मेरे patient के साथ cardiovascular risk factors हैं, किडनी के risk factors हैं, तो मैं semaglutide को उस वक्त तक prefer करूंगा जब तक tirzepatide की ऐसी studies नहीं आती. कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि सही है आज स्टडीज नहीं है लेकिन इसकी भी आ जाएंगी, तो वो ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, तो वो दे टेक दैट कॉल कि नहीं चूंकि इसका वेट लॉस बेहतर हो रहा है तो इससे जो है ना वो आउटकम स्टडीज भी बेहतर आएंगी. दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिबेट विद इन द डॉक्टर्स. तो ये अभी इस वक्त जो है ना वो सिचुएशन है मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इन दोनों प्रोडक्ट्स की. ग्लोबली जो है वो tirzepatide की पर्चियां ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू सेमाग्लुटाइड.
Despite this, now that could be an impact of more patients on obesity taking tirzepatide. तो ये मुझे भी उसका वो कट करके उसकी डिटेल नहीं पता कि अगर हम सिर्फ पेशेंट्स देखें कि जिनके साथ कार्डियोमेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स हैं तो उस पे कौन लीड कर रहा है, ये अभी तक मैंने देखा नहीं है. But I would presume that that's actually where Ozempic is selling right now. Price का differential है. Tirzepatide therapy is almost twice as expensive as semaglutide therapy. तो यानी कि generics की अगर मैं बात करूं तो अगर हमारी semaglutide generic is like 10 to 12,000 per month, then the generic tirzepatide जो है वो 22 to 25,000 होगी. तो price differential can make a difference in the doctor's choice depending upon the patient. कुछ doctors कहते हैं कि ठीक है यार start with a lower cost medicine, ये बहुत अच्छी दवाई है, अगर इसमें मुझे रिजल्ट मिल गए तो ठीक है, मुझे पेशेंट को ज़्यादा एक्सपेंसिव ड्रग में मूव करने की जरूरत ही नहीं है, अगर इससे नहीं मिले तो फिर मैं शिफ्ट कर जाऊंगा. तो ये डिपेंड करता है फिजिशियन की प्रेफरेंस के ऊपर कि बिकॉज evidence and logic versus the clinician's preference and his choice, these are two different things. तो ये इस तरीके से ये हो रहा है, लेकिन ये कहानी जो है इन ड्रग्स की यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही ना. आगे ओरल ड्रग्स आ रही हैं जो कि आर एज इफेक्टिव एज फॉर एग्जांपल semaglutide इंजेक्शन और इवन tirzepatide इंजेक्शन, लेकिन फिर उसके आगे ऐसे इंजेक्शंस आ रहे हैं जो उन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है. तो ये एक पूरी पाइपलाइन है. अभी एक पूरा एक समझे क्लास ऑफ ड्रग्स शुरू हुई हैं. तो इसमें मुसलसल जो है ना वो जो कंपनीज हैं जो रिसर्च कर रही हैं वो कोशिश करेंगी उसमें कि उसमें कोई ना कोई इनोवेशन लेकर आए, कोई ना कोई बेनिफिट लेकर आए. तो ये चलता रहेगा उसके अंदर. Can I go अच्छा. ahead? जी जी. Shumaila Badr here. मैंने चैट बॉक्स में लिखा था क्वेश्चंस और एनालिस्ट भी चैट बॉक्स में लिखे हैं, तो you might want to look at that. मगर जी मैं I just have two quick questions. एक तो there was recently some news that the government is delaying fixing of drug prices. So is Mactro also affected by this problem? And if yes, then how are you managing it? And my second question was about dividend payout. What's your outlook on your dividend payout? जो उसमें ऐसा होता है कि जो आई थिंक जो इशू हम लोग आजकल देख रहे हैं वो ये होता है कि जो मॉलिक्यूल्स फर्स्ट टाइम अप्रूव हो रहे होते हैं वो कैबिनेट के पास जा रहे होते हैं. somehow that's the process. थोड़ा सा उसकी कोई हिस्टोरिकल रीजन है जिसकी वजह से हो रहा है. तो मेरा ख्याल है कि हमारी कोई एक ऐसी प्रोडक्ट है which is awaiting that that process कि वो वहाँ से अप्रूवल मिलेगा तो फिर प्राइस उसकी होगी, प्राइस फिक्स होगी उसकी. तो बट नथिंग सिग्निफिकेंट. एंड आई थिंक वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू होता है, वो कभी कभार डिले हो जाता है, फिर हम लोग शोर मचाते हैं, फिर वो उसको कर देते हैं. ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म कैसे एक टेक्निकल चीज के ऊपर डिसाइड कर सकता है, तो वो इट्स अनफॉर्चुनेट बट ऐसा है वो. तो या सो इट्स लाइक दैट. सॉरी आपका दूसरा सवाल था जी दूसरा डिविडेंड पे आउट के बारे में कि व्हाट इज योर आउटलुक ऑन डिविडेंड पे आउट. सो हमने प्रिंसिपली मतलब हमारा इंटेंशन ये है कि हम साल में जो है वो एक अपना एक स्टैंडर्ड पे आउट का वो बनाएंगे ताकि शेयर होल्डर्स को जो है वो विजिबिलिटी हो. साल में 2 पे आउट्स और उसको हम ग्रेजुअली इम्प्रूव करते चले जाएंगे. और अभी जो है वो जैसे पिछले साल भी 2 मरतबा हमने दिया है, उससे पहले भी इस साल भी यही प्लान है. अभी सिर्फ ये है कि थोड़ा सा वी हैव टू कंसिडर the growth opportunities which present ourselves in this therapeutic area. GLP GIP के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और कंपनियां उसके अंदर बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं. So that's something that the board will consider.
और दूसरा ये है कि जो अभी जो रीजनल सिचुएशन है उसके जो फुल इम्पैक्ट्स हैं टू द द ट्रांसमिशन ऑफ इट इनटू द पाकिस्तान इकोनॉमी and then how it translates into the pharma industry and for our business. So usko hum we are trying to get a handle on that, and so that's also going to be a consideration when the time comes for dividends. तो ये दो चीजें हैं, मेरे ख्याल है इससे ज्यादा मुझे नहीं बोलना चाहिए. Yeah, thank you very much. You're welcome. आपने कहा था कि और भी सवाल हैं जो कि चैट बॉक्स में तो जी, चैट मिलेंगे. बॉक्स में एनालिस्ट ने लिखे हुए सवाल, जी. तो मैं बस आपकी अटेंशन उसकी तरफ ड्रॉ करना चाह रही थी कि एनालिस्ट ने चैट बॉक्स में जी. सवाल डाले हुए हैं. थैंक यू. हाँ जी बिल्कुल. हाँ तो एक जी. हुसैन की तरफ से है, जी. how is the current geopolitical situation likely to impact the pharmaceutical sector in terms of API pricing, potential supply chain disruptions? जी, ये थ्रेट है बिल्कुल, और इसको प्रोएक्टिवली जो है वो हम टैकल कर रहे हैं in terms of increasing our investment in inventories and really trying to, अभी तो इस वक्त sort of we are seeing कि stance कैसा emerge होता है चाइना से इंडिया के अंदर, so what we are sensitive towards this. And what has been the recent market response to Tirzatrim? Mashallah, Tirzatrim is performing well. जनवरी में हमने इसकी अवेलेबिलिटी कराई, फरवरी में लॉन्च हुआ है. फरवरी मार्च चूंकि रमजान था तो थोड़ा सा इसके अंदर रमजान के अंदर पेशेंट इंडक्शंस कम होते हैं, लेकिन द अर्ली feedback from doctors, they love the pen device, and they are happy, very happy with the results जिन्होंने इस्तेमाल किया है. So I think this is going to be another blockbuster after semaglutide, inshallah ta'ala. Could management provide an overview of the cost structure for Tirzatrim and if possible disclose the associated profit margins? Naveed, is it allowed for us to do this? Can we do this? नहीं, ये तो ऐसी इंफॉर्मेशन होगी ना कि नहीं, बेसिकली ये बहुत इनसाइड इंफॉर्मेशन होगी, वो एक्सक्लूसिव इस सेशन में शेयर करेंगे, तो वी विल हैव टू मेक एन अनाउंसमेंट ऑन द PSX एज वेल. So okay, so it's not appropriate. Well, please excuse us for not being able to answer that. Generally ये कि the GLP therapies constitute better gross margins, I guess, than the usual medicine class. There was recently some news about price fixing. Yes, Shumaila का we सवाल have था, ये addressed this. Please share email address. I've shared the email address. Patent is expiring this month in India. Supply को तो influence नहीं करेगा, but semaglutide patent expiring in India and China means that the developing country markets would have an influx of Chinese and Indian companies, with their finished products. तो अभी तक तो semaglutide के वो APIs बेच रहे थे, लेकिन अब ग्लोबल मार्केट्स के अंदर जो हैं वो अपनी फॉर्मुलेशंस भी वो लेके जाएंगे. तो हमें ये एडवांटेज है कि हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में थोड़ा सा उनसे पहले हैं, बिकॉज हमने पहले लॉन्च किया था. इसमें टाइम लगता है. द रेगुलेटरी एक सवाल था आई थिंक मुस्तकीम की तरफ से कि व्हाट्स द अपडेट ऑन एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशंस एंड एक्सपोर्ट रेवेन्यूज फ्रॉम दिस. तो आई थिंक हमारे मल्टीपल कंट्रीज के अंदर प्रोसेस में है, और 1 और 2 कंट्रीज में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूवल हो गई है. डॉक्टर साहब ऐसे ही है डॉक्टर फिदा? जी सर, जो है वो कैम्बोडिया में लॉन्च कर चुके हैं, बाकी कुछ कंट्रीज में रजिस्ट्रेशन लेटर्स आने वाले हैं. तो अगले क्वार्टर्स में जो है वो फिर ये रियलाइज होने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला. एडवांटेज पाकिस्तानी कंपनीज को ये होगा कि इवन दो चाइना और इंडिया से जो है वो सेमाग्लूटाइड के जेनरिक प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे, लेकिन टिर्ज़ापिटाइड के नहीं आ रहे होंगे, बिकॉज टिर्ज़ापिटाइड का पेटेंट अभी काफ़ी दिनों तक है. तो आई थिंक वो हमें एडवांटेज रहेगा कि टिर्ज़ापिटाइड की फॉर्मुलेशंस, क्योंकि हमने ऑब्वियसली मल्टीपल कंट्रीज के अंदर उसको मूव कर दिया है उसके रजिस्ट्रेशन को, तो वहाँ पे हमारे पास
एक एडवांटेज होगा versus other countries. And I think the other is the export halt to Afghanistan. And export halt to Afghanistan has been very unfortunate. Pakistani industry को काफी उसका impact हुआ है. हमारा भी अच्छा growing business था अफगानिस्तान में जो कि बिल्कुल रुक गया है. तो we were initially expecting कि शायद ये resolve हो जाएगा, लेकिन तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये anytime soon होगा. It has become quite complicated. So ये loss has to be made up from other export markets. और export के ऊपर तो एक already एक मतलब aggressive drive हमारी चली रही है, और इस साल के भी अंदर हम बहुत heavy मतलब काफी dramatic growth देख रहे हैं exports के अंदर. हमारी exports कम है, जैसे आपने देखा about 8%, लेकिन I think it would represent almost doubling of if not doubling, at least 60-70% growth over last year. तो export का जो हमारा trajectory है वो तो वैसे ही बहुत aggressive चल रही है. तो even unfortunately we've lost Afghanistan, but ये कि वो export की जो trajectory है उसको make up कर लेंगे इंशाल्लाह ताला moving forward. How's the feedback from the new export markets? Cambodia, so mashallah, yeah, it's a product. Alhamdulillah, Mactar ke products wherever we've commercialized in Pakistan, abroad, the physicians and doctors are extremely happy with the quality. And so it's now in this case it's just a matter of how soon we can take the product to the maximum number of countries. मोहम्मद अमान का सवाल है कि इस बोनस पे आउट कंसिडरेशन गोइंग फॉरवर्ड. It's nothing currently that we are evaluating. Kindly share essential and non-essential drugs share in Mactar's International's portfolio. It's more towards essential, but almost 52% as of now. Overall, हमारे portfolio में 52% non-essential and 48 essential category में. Non-essential बढ़ता जाएगा, I guess, because of both the relative flexibility in pricing and also because ये जो class of drugs हैं GLP, GIP की ये non-essential में treat होती हैं, तो ये major growth drivers हैं. Third and fourth quarters are better compared to first two. Any specific reasons which drugs account for higher margins in the last two quarters? So third and fourth quarter, यानी कि 2025 are better as compared to the first two. इसके अंदर जो है वो एक तो natural चूँकि evolution Mactar की growth की अच्छी है, and obviously growth is incremental month to month. तो जब आप क्रॉनिक थेरेपीज के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपके डॉक्टर्स और पेशेंट्स ऐड हो रहे होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपका हर आने वाला क्वार्टर पिछले क्वार्टर से बेहतर होता है. तो आई थिंक एक वजह ये होती है, एक जनरल वजह है. एंड गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग बिकॉज बोथ सेमाग्लूटाइड एंड ट्रिज़ोट्रिन, मतलब देखिए हमें कई साल लगे अपने ब्रांड्स को 1 बिलियन का बनाने के लिए, डेकेड्स लगे, और इस केस के अंदर ये 1 बिलियन जो है ना 1 साल में पहुंच रहे हैं, 2 साल के अंदर पहुंच रहे हैं. तो ड्रामेटिक उसका जो है वो इम्पैक्ट है ऑन ग्रोथ माशाल्लाह. और वैसे भी मैक्टर के जो पोर्टफोलियो है वो इट्स मोर फोकस्ड टुवर्ड्स क्रॉनिक थेरेपीज एंड स्पेशलिटीज. तो ये फिनोमेना वी एक्सपेक्ट गोइंग फॉरवर्ड के सीजनैलिटी इतनी नहीं होती. हाँ, हमारे पोर्टफोलियो में सीजनल प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि विंटर के प्रोडक्ट्स हैं, एंटीबायोटिक जो समर में ज़्यादा चलते हैं, लेकिन आई थिंक वो गोइंग फॉरवर्ड उसका इम्पैक्ट कम होता जाएगा. Which drugs account for higher margins in the last 2 quarters? इसमें Relaxin हमारी एक ड्रग है, it's a control drug. Bromazepam, it's an anti-anxiety. उसके margins अच्छे हैं relatively. Cobalmin के हैं बहुत अच्छे, GLP drugs के अच्छे margins हैं. तो और ये mix होता है हर कंपनी के लिए कि some drugs जो अच्छे brands बन जाते हैं उनके margins और उनके जो जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर प्रमोशन एक्सपेंसेस कहते हैं
वो बेहतर हो जाते हैं. Even if gross margins are tight, but if the brand is big enough and your the selling expense is a smaller percentage of total sales, तो नीचे जो है वो उसका जो profitability है ज़्यादा आ रही होती है. But नए products में challenge होता है कि जैसे स्पेशली अगर आप GLP GIP की बात करेंगे तो ये बहुत ही इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव है. हमें रेप्स बढ़ाने हैं, हमें डॉक्टर्स की अवेयरनेस करनी है, हमें कंज्यूमर की अवेयरनेस करनी है. You can't afford to leave any town. You have to be there in every clinic because if you're not, then the competition will get there before you. तो ये बहुत ही इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव मॉलिक्यूल्स हैं. तो एंड होना भी चाहिए. आपको इन्वेस्ट करना होता है. फिर आपको अगर इसको 10 बिलियन का या 20 बिलियन की आपने फॉर एग्जांपल इससे रेवेन्यू जनरेट करना है इन शॉर्ट टाइम, तो यू विल हैव टू इन्वेस्ट ऑब्वियसली इनटू इट. तो I hope that answers the question. अच्छा, why Ozempic pen price is 2x the price of Seglutide pen? What kind of competitive advantage do you have? Generally, जो multinationals होते हैं ना, वो अपनी global pricing follow करते हैं. वो definitely पाकिस्तान और developing countries के लिए कम करते हैं, लेकिन बहुत कम नहीं करते. और especially ऐसी drug जैसे Ozempic है, जिसमें उनके पास shortage चल रही है, तो वो launch नहीं करेंगे पाकिस्तान में. क्योंकि उनकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो मतलब बहुत ज़्यादा है. तो आप फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर अक्रॉस अगर आप दुबई में देखें तो आई थिंक ओजेम्पिक जो होगा उसकी शायद मंथली जो कॉस्ट होगी वो मोर देन 100,000 मे बी 150,000 रुपीज़ पर मंथ होगी. पाकिस्तान में वो कम करके भी जो है वो बेच रहे हैं 25 to 30,000 पर मंथ का. और एज कम्पेयर टू दैट हमारी जो जेनरिक कंपनीज की प्राइसिंग है वो उनकी तकरीबन हाफ है और या हाफ से भी कम है. तो ये तो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है और इस केस में ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है. और तो सबसे बड़ा देखें जेनरिक कंपनीज का बायोसिमिलर्स का तो रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस ये होता है कि आप अच्छी क्वालिटी दें, वो स्टैंडर्ड की क्वालिटी दें और आप प्राइस कम रखें. अगर हमारी प्राइस कम नहीं होगी तो देयर इज नो इंसेंटिव फॉर द कंज्यूमर और द डॉक्टर टू प्रिस्क्राइब अस. तो जेनरिक कंपनीज का तो रोल ही ये है कि वो कंपटीशन प्रोवाइड करें और उस कंपटीशन के नतीजे में पेशेंट्स का फ़ायदा हो, कंज्यूमर्स का फ़ायदा हो. और हमारा एक्सपीरियंस ये है, मैं बार बार कहता हूँ, शायद पहले भी इस फोरम में कहा हो, कि जब हमने बायोसिमिलर्स लॉन्च किए पाकिस्तान में, ऑन एवरेज मल्टीनेशनल्स हैव हाफ देयर प्राइसेस, बिकॉज उससे पहले वो बेच रहे थे, मोनोपोली सिचुएशन थी. अब जब उनको फेयर हुआ कि एक अच्छी कंपनी आ रही है तो वो अपनी कीमतें पहले ही लॉन्च से पहले आधी कर देते हैं. इसमें ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि इसमें इनके ऊपर बहुत ज़्यादा सप्लाई शॉर्टेज का प्रेशर था. तो ये दे कंटिन्यू टू सेल एंड डिस्पाइट देम हैविंग डबल द प्राइस, you know, there are patients who you know would prefer using a branded product. तो वो उनको मिल रहा है. तो इनकी जो वैल्यू में शेयर होता है वो ऑब्वियसली इसलिए ज़्यादा नज़र आता है क्योंकि इनकी प्राइस डबल होती है, मोर देन डबल होती है, लेकिन इनके यूनिट्स कम होते हैं. तो अगर अभी हम देखेंगे पाकिस्तान के अंदर तो सारी नेशनल कंपनीज का शेयर में भी जो है वो 70% ऑलरेडी होगा और इनका 20% होगा यूनिट्स के अंदर, लेकिन वैल्यू के अंदर ये 40-50% पे चले जाएंगे. Why has Mactor launched 2 brands? तो एक्चुअली वो ये ड्रैप की रिक्वायरमेंट थी कि आप जो 2 ब्रांड्स रखें इसको, क्योंकि ग्लोबली ओजेम्पिक है और वीगवी है, दोनों के अंदर सेमाग्लूटाइड है, लेकिन चूंकि नोवो नॉर्डिस्क ने वीगवी को वेट लॉस में रखा था और ओजेम्पिक को डायबिटीज में रखा था, तो उनका ये कहना था कि आप भी ऐसा करें. हमारा था ख्याल कि इससे फर्क नहीं पड़ता, ये एक मार्केटिंग का टूल है, बट देन दे वर नॉट फ्लेक्सिबल ऑन दैट. तो फिर इसलिए हमने इसके 2 किए. इसी तरीके से आप देखेंगे फिरोजसंस का भी ऐसा ही है. ये आई थिंक उनका एक ब्रांड कोई और है, एक ब्रांड कुछ और है, और गेट्स का भी ऐसा ही है. तो ये 2 ब्रांड्स करने की जो है वो ड्रैप की तरफ से रिक्वायरमेंट थी. जी, फिरोजसंस का भी सिमाटाइड और सिमाजिन है. हाँ, मैं कंपटीशन का ब्रांड नेम का नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन तो सही कह रहे मैं मजाक कर रहा हूँ. सेमाटाइड और सेमाजिन है और इसी तरह से गेट्स का भी. Can you let us know maximum retail price of insulin that DRAP has allowed? नहीं, मेरे अभी जहन में नहीं है क्योंकि हम इंसुलिन करते नहीं है, तो ये मेरे जहन में नहीं है.
Semaglutide API is sourced from China. Yes, semaglutide API is sourced from China. There is a product Medtronic 30K का इसमें लिखा होता है रिटेल और हाँ नो ये डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं होता, ये पेशेंट्स को ही होता है। ये जो बहुत सारे स्पेशलिटी के ड्रग्स ऐसे होते हैं कि हम उनकी प्राइस जब लेते हैं मिनिस्ट्री से, तो मिनिस्ट्री का एक फॉर्मूला होता है कि 20% लेस, ये पहले होता था कि 20% लेस, अभी भी शायद है 20% लेस दी ओरिजिनेटर प्राइस वो आपको देते हैं। तो हम प्राइस तो वो ले लेते हैं, और उसकी वजह ये होती है क्योंकि फिर बाद में हमें उनके पास ड्रैप के पास जाना नहीं पड़ता प्राइस इंक्रीज करने के लिए। लेकिन एक्चुअली में ये ड्रग्स जो हैं वो क्योंकि हॉस्पिटल्स में और अगर ये ऑन्कोलॉजी में इस्तेमाल हो रही हैं तो कैंसर सेंटर में इस्तेमाल हो रही होती हैं, तो वहाँ पे आप उसको रिटेल प्राइस पे भी नहीं बेचते, आप उसको एक बहुत ही रीजनेबल पेशेंट प्राइस के ऊपर बेचते हैं, और उस पेशेंट प्राइस के ऊपर फार्मेसीज का वही 15% का डिस्काउंट होता है जो रिटेल के ऊपर होता है। तो ऐसा नहीं होता कि ये हम फार्मेसीज को इतना बिकॉज ये दवाइयाँ ये जो ट्रेड ऑफर्स होते हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से उस पर कैप होती है ट्रेड ऑफर्स की, और ट्रेड ऑफर्स एसेंशियली ओटीसी टाइप प्रोडक्ट्स में चलते हैं। मैकडॉनिक तो एक बहुत ही सीरियस प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है जो कैंसर में और आई थिंक ऑस्टियोपोरोसिस में इस्तेमाल होती है, तो उसके अंदर देयर इज नो rationale for giving heavy discount to pharmacies because it's completely driven by prescription and the prescription has to be followed. So वहाँ पे ऐसा नहीं होता। Yep, I think that's it. जी Ali, thank you for your time and thank you everyone for your time. I see Zuhair and Farhan तो हमारी Zuhair हैं Chase Security से Zuhair. Thank you for staying towards the end. Zainab, Zahina, and Mohammad Tala, Uzaifa, all the colleagues who joined us and who are with us. Thank you very much for attending. thank you and Assalamu alaikum.